and listening you. Okay, it's nice being here, Pratiksha. थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा था और आपको मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है. Same here. Okay, so now I would like to call Harsh to put forth his question in front of you. Harsh, over to you. Uh, Good evening, ma'am. Good evening, Harsh. Am I audible? Yes, you are. First of all, thank you so much for joining us today, and we're really glad to have you here. It's an honor, And, to be talking to you all, being amongst the young generation. okay, so the very first question is, how's pandemic treating you lately? Honestly, for me, it has been a wonderful time. More time to reflect, to meditate, do the things which I never used to find time. So, for me, honestly, it has been great. Enough time to eat healthy food, exercise, spending time amongst your own people, bonding. It's a great time. Honestly, I have nothing to crib except that sometimes you long to physically touch the people, physically be with them. Only that part is missing. Okay, that's really great to know because generally people do complain about this time. So it's really great to know that you are enjoying the time and it's been great for you. I have a question to ask. That's quite that would might sound quite you have been doing these interviews and live sessions for so long and even in physical form as well. So I would Right. like to ask that what is the most common जो आपसे पूछा जाता है most common question जो आपसे पूछा जाता है. आपने स्टोरी टेलिंग की शुरुआत कैसे की? Is the most common question which everybody asks me. Okay, so would you like to answer that question for us? Okay. I think I was a born storyteller, Harsh. अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है I was a born storyteller because my mother, my uncles and aunts tell me कि तुम बचपन से you wanted a captive audience and tell and share something. So honestly, I'm a people's person. I love connecting with people, and that is the reason I chose psychology and did my master's and MPhil in psychology, because psychology really helps you to connect people and helps you to understand people better, and when you understand, definitely there'll be a better connection. Session, I would start with a small story. That time I was not a storyteller, I was a trainer and psychologist, and I realized that more than anything else, पूरा सेशन खत्म हो जाता था और सबको स्टोरीज याद रहती थी. तो मैंने कहा कि जरूर कोई तो बात होगी, एंड देन आई गॉट ट्रेन्ड इन कथालया by Geeta Ramanujam, who is a name in storytelling, who is my guru in storytelling. And after that, there was no looking back. Like, I got trained by all international storytellers and storytellers in India. And as I started learning more and more, you will be amazed, पहले मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली स्टोरी सुनाती थी. जब ज्यादा सीख लेते हो तो आपको बहुत डर लगता है कि पता नहीं हम ये सही कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे हैं. बट दैट इज हाउ आई बिगिन माय जर्नी, एंड इट ऑल स्टार्टेड लाइक आई हैव बीन अ ट्रेनर फॉर about 15 years, but my storytelling journey started only 6 years back. Thank you so much, ma'am, for your answer. You have been in Bhopal for quite long, and so I would like to ask that भोपाल ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन किया, और अगर आप भोपाल में नहीं होते तो आपकी लाइफ में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है या पहलू है जो मिस करते आप?
हर्ष, मैं भोपाल की हूँ, बट मैं भोपाल में काफी समय के बाद रहने आई हूँ. माय हस्बैंड इज एन आर्मी ऑफिसर. तो पिछले 34 years से आई बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया. देहरादून, लैंसडाउन, जोशीमठ, कारगिल, मदुरई, सारी जगह हम हर 2-3 साल में अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते थे और जहां पोस्टिंग आती थी तो चले जाते थे. पर भोपाल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने सारा अपनी पढ़ाई यहीं से की है और काफी लंबा समय यहाँ गुजारा है. भोपाल का बहुत बड़ा योगदान है एक्चुअली देखा जाए तो. इट्स अ वेरी कल्चरली रिच प्लेस. कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी लोक रंग, कभी मानव संग्रहालय में डांस होते रहते हैं, कभी भारत भवन में प्लेस होते रहते हैं. तो मुझे लगता है भोपाल ने मेरी पर्सनालिटी को बहुत शेप किया है इन द सेंस टू अप्रिशिएट आर्ट एंड कल्चर. सो दैट इज हाउ भोपाल हैज कंट्रीब्यूटेड इन माय जर्नी. And I'm very happy to be here. I'm here for the past 1.5 years now, permanently. And that is how it is. Okay, that's really great. I recently have been a part of a workshop on street play that was, and we had some guests from Bhopal itself. We had Alok Chatterjee sir, director of MPSD, and we had Manoj Nair sir, the director of the Shadow Theatre Group Bhopal. Wonderful, yeah. Yeah, so it was really great talking to them as well about Bhopal and the culture of Bhopal, and it was great knowing from you too. Yeah. Ma'am, I have a question that while someone does storytelling, what are the key points that one should remember to enhance his or her skills? As in, if I am a beginner in storytelling, what are the key points that I am supposed to remember? The first and most important thing for any storyteller is to build a connect. ऑडियंस के संग कनेक्ट बिल्ड करना सबसे जरूरी बात है. आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, आप बहुत अच्छे से सुनाते हैं, लेकिन यदि आप ऑडियंस के संग कनेक्ट नहीं बिल्ड कर पाए तो कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं. सो अकॉर्डिंग टू मी, why storytelling? For that matter, हर चीज में जिंदगी की that connect is an important part. And that connect ka, being a psychologist, it has really helped me in building this connect with the audience. When you look at them, when you are genuinely interested in them, when you want to know about them, that is where that connect builds up. The second most important thing is your ability to bring the visuals. आप जब कहानी सुनते हैं तो आप कहानी विजुअल्स में सुनते हैं. ओके, सो अगर आप में वो स्किल है कि वो आप विजुअल्स स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनको कर पाए. जैसे मैंने कहा, मैं आपको घर के बारे में बताऊं, और एक स्टोरी में मैंने कहा वो अपने घर चला गया, और वो अपने घर गया जो खूब बड़ा सा था, उसमें लकड़ी का दरवाजा था, कमरे की सारी दीवारें सफेद थी, और पास में लगे रजनीगंधा के फूलों की महक भरी हुई थी. नाउ यू टेल मी, व्हाट इज मोर, आई मीन what helps you to visualize? The more detailing the storyteller gives, the more it is interesting. Absolutely. The more detailing, the more use of sensory things. उसको क्या आवाज सुनाई दी, उसको महक कैसी थी, उसको क्या दिखा. So the more the sensory elements are in storytelling, the more effective it is. तीसरी चीज है, एक पॉज बहुत जरूरी होता है स्टोरी टेलिंग में. आपने कुछ बोला एंड यू नीड टू गिव अ बिट ऑफ पॉज, बट वो सही जगह में देना है, सो दैट द पर्सन स्टार्ट्स वंडरिंग कि अब आगे क्या होगा. ओके, दैट क्यूरियोसिटी दैट बिल्ड्स अप, यू नो, अब क्या होगा, अब क्या होगा. मुझे याद है मेरी दादी कहानी जब मुझे सुनाती थी तो कहती थी हुंकारी भरते रहना, तो बस हम करते थे सो that is what to keep the person engaged. Okay, and now of course storytelling has gone to a different level altogether. Audience engagement is an important thing, पर वो बात की बातें हैं. Important चीज
कनेक्ट है आपका, जितना विजुअल्स आप दे सकते हो, एंड अ पॉज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Surely, ma'am, we'll take care of these points and try to work upon them. And I was very curious since childhood about a question regarding psychology. When I was in school days, no, so there were certain seniors who were pursuing psychology or who were somehow associated to psychology in university. So they used to tell me, I don't know whether it was a myth or reality, that the professor used to guess whether they are lying or not. And whether they lied there, why they were late for the class, and so whether I would like to ask that is this just an assumption or it's true that the psychology teachers or the psychology people get to read the mind of people? Well, we have no such skill to read the mind of the person, but body language is an integral part of psychology. Okay, so एक छोटी सी चीज है, जब आप झूठ बोलते हैं तो कभी किसी की आंख में आंख डालते नहीं है. सो प्रोबेबली जब आप छोटे रहते हो, आप अवॉइड करते हो इधर उधर टीचर की गेज, तो टीचर समझ जाते थे. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं. ठीक है, आप बहुत एम्फसिस होता है आपका कि मैं जोर जोर से अपनी बात बोलूं, ठहर ठहर के नहीं बोलूं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कन्विंस somebody. सो दिस इज ऑल अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. बट अगर आपने इसको मास्टर कर लिया है तो अच्छा सफेद झूठ बोलो, किसी को पता नहीं चलेगा. सो इट इज ऑल अबाउट हाउ गुड यू आर लाइंग. एंड यस, नो साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट रीड द माइंड्स ऑफ पीपल. अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा. The psychology student get to learn, not obviously from the traditional education that way, not intentionally, but somehow throughout the process, does he get to learn how to lie properly? That anybody, a good actor can. Yes, there are certain things like I told you कि eye contact नहीं करेगा जो झूठ बोलेगा. तो अगर आप झूठ बोले और किसी के संग eye contact करें, धीमे धीमे बोलें, सांस अपनी रेगुलेट करके बोले, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा. तो दिस इज, I think it comes with practice. It comes with practice. Spontaneously नहीं आएगा शायद, बट बिल्कुल झूठ बोलने की प्रैक्टिस की जा सकती है और एक्टर्स और सारे लोग करते हैं. I have a question that I would like to know the answer to. I have heard that जो presence of mind होता है किसी भी स्किल के लिए, मतलब कई बार स्टोरी सुना रहे हैं, भूल गए बीच में, या कोई भी आर्टिस्टिक परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में खासकर, बीच में कुछ डायलॉग भूल गए या कुछ भी भूल गए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है कि कहाँ चेंज करना है, इम्प्रूव करना है. तो मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड केवल प्रैक्टिस से डेवलप होता है या उसकी कोई फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज भी होती है? Presence of mind is a very instinctive thing, but yes, it is a skill. Okay, आपने जितना like any other skill, आपको ऐसी कोई सिचुएशन है, सपोज आपके घर छोटी सी चीज है, गेस्ट आ गए, ओके, और आपके घर में कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए, ओके, तो क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे? क्या आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड ये रहेगा कि मैं पीछे से जाके किस तरह से जाके लेके आऊं कि उनको पता नहीं चले? तो हर चीज में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है. कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आता है, तो इवन दैट इट टेक्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, to reply. So it is a skill. It is a skill. The more you use it, in any case, it's a brain, it's a cognitive function. तो कहते हैं ना कि जितना चक्कू को धार करो, जितना उसका यूज करो. इसके लिए स्किल आप एक्सरसाइज पूछ रहे थे, तो एक बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज है. अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, फिक्शनल वे में अगर आप इसमें काम करें कि अगर मेरे पास चक्कू नहीं है तो मैं किस चीज से काटूंगा, अगर मेरे पास साबुन नहीं है तो मैं कैसे कपड़े और साफ कर सकता हूं. सो द मोर यू थिंक, इट्स अ कॉग्निटिव स्किल. तो जब आप ऐसे ही छोटे छोटे आलतू फालतू सवालों के जवाब ढूंढते रहोगे तो आपकी वो स्किल डेवलप कर रहे हो, आप उस ब्रेन का वो पार्ट डेवलप कर रहे हो विच इज रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंकिंग.
Okay. That is the thing. I hope I've been able to answer the question. Certainly, ma'am. Sure, ma'am. Thank you so much. अभी तो फिलहाल मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है. I would like to ask Pratiksha Didi to continue the session. Okay. So, मैम, जैसे कि मुझे तो साइकोलॉजी बहुत ही पसंद है, तो rather say I love psychology. So I used to articles पढ़ते रहते हैं. जहाँ भी साइकोलॉजी दिखती है तो पहले साइकोलॉजी ही पढ़ते हैं. उसके अलावा साइंस या कोई उसी डायरेक्शन में होने वाले हैं. So my first question is कि one of my friend told me more you read the symptoms of psychological disorder, more you start feeling that symptoms. So is that true with psychological disorders? It's all about how aware you are. Okay, अगर आप बहुत अवेयरनेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने लाइक पूछा कि बार बार हाथ धोना ओसीडी होता है या बार बार सफाई करना, पर आप कॉन्शियस हैं कि इट इज जस्ट अ सिम्टम, ओके, देन यू विल नॉट हैव दिस. बट एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, you know, it is all related to fear. If that fear element is not there, you will not have. Okay, but if you are by nature a fearful person who likes to believe, it's a personality related thing. Honestly, not everybody, it doesn't happen to everybody, but certain personalities are such. You know, I would say a fearful personality. हर चीज का डर कि माँ को सीढ़ी से उतरा तो बच्चा गिर जाएगा, अब इसने ये छू लिया जर्म्स लग जाएंगे. ऐसे हर कोई तो नहीं करता है. बट इफ द पर्सनालिटी इज सच, देन यू माइट, बट अदरवाइज नो, देयर इज नो रीजन. नहीं तो डॉक्टर्स तो सारी बीमारियां सोचने लगे कि ये तो सभी हो सकती है. So you told that पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, तो कैन पर्सनालिटी चेंज? ऑब्वियसली, बिल्कुल. ये एक वॉटसन करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका बड़ा फेमस ये रहा है कि गिव मी अ डजन किड्स एंड आई विल मेक देम द थीफ, रॉबर्ट्स, म्यूजिशियंस और एनीथिंग यू वांट मी टू. सो इसका सीधा साधा ये है कि जेनेटिक्स प्लेज अ रोल, but nature predominantly plays a major role. ओके, एंड आजकल तो बहुत प्रूव हो गया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टर्म है साइकोलॉजी का विच सेज कि आप न्यूरल नेटवर्क चेंज कर सकते हैं. तो जब आपने ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क चेंज कर दिया तो आपने सब चेंज कर दिया. एक बहुत डरने वाला आदमी शांत हो सकता है, एक बहुत शांत आदमी डरने वाला बन सकता है. I personally believe nature is very important. Genetic has a minor role to play. I would say. नहीं तो फिर जेनेटिक का रोल होता तो सारे चोरों के बच्चे चोर बनते, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर्स बनते. So it's a nature-nurture controversy. I believe in nurturing part or the environmental part. Okay, so my next question goes in the same direction. As I say, I love psychology. तो जो psychological disorder होते हैं, we know there's a difference between psychiatrist and a psychologist. हाँ, तो can psychological disorder be treated only with counseling? I mean by the psychologist or without medication? Can it be treated with only counseling therapies? No, Pratiksha, it all depends on the degree of it. ये बिल्कुल it's a spectrum. एक लाइन है, उसमें यहां तक है अगर आप 5-6 तक सब में सिम्टम्स होते हैं. जैसे आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. डर हम सब में होता है, ठीक है, पर एक डर अगर ये हो जाए कि कमरे से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज एन एबनॉर्मल काइंड ऑफ फियर. फियर सब में है 2, 3, 4, बट अगर फियर 8 आ जाता है देन इट्स एन एबनॉर्मल काइंड ऑफ फियर. सो psychologist, the first step is going to a psychologist. The psychologist will assess you.
Okay, there are various ways to assess by talking, by doing, by taking certain tests. They assess you, and then they decide whether the problem can be solved only by counseling or it needs a psychiatric treatment. So, as for me, when somebody comes to me, the first session I assess, and sometimes I feel कि नहीं बहुत ज्यादा है, ये केवल काउंसलिंग से नहीं चलेगा. We need certain medications. जैसे कि कोई इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो बात ही नहीं कर पा रहा है. काउंसलिंग इज अ टॉकिंग थेरेपी. सो मेडिकेशन टू पुट हिम, टू रिलैक्स हिम, वो साइकियाट्रिस्ट दे सकता है, एंटी एंजाइटी पिल्स. सो इट्स अ रोल ऑफ बोथ काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट. पर अगर छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे स्कूल में बच्चे हैं, डिसीजन मेकिंग है, यू नो, एनी अदर प्रॉब्लम which is simpler in nature, okay, then it can be definitely dealt with therapy. So ma'am, as we talk about the positive psychology, उसमें उसके strengths होती हैं कुछ, जैसे कि justice है, temperance है, and transcendence है. पढ़ा हुआ था पोस्ट ग्रेजुएशन में, थोड़ा थोड़ा याद है. तो उसमें वी ऑल कंसिडर इट एज लाइक मोरल वैल्यूज. हम इन्हें मोरल वैल्यूज भी कंसिडर करते हैं. तो जैसा कि अगर कभी जैसे जिसमें ये मोरल वैल्यूज नहीं है या मोरल वैल्यूज हैं, तो वो पर्सन साइकोपैथ नहीं हो सकता है. अगेन प्रतीक्षा, इसमें मैं ये कहूंगी कि एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है. Okay, now if you keep them in an environment which is stable, which is healthy, which is nice, ये manifest नहीं होंगी. Okay, you might have the tendencies, but manifest नहीं होंगी. Right, वो दब जाती हैं. But अगर if the environment is not conducive, then it can be manifested. So like it is healthy, maybe शायद झूठ बोलने की जीन्स है मेरे में. ओके, लेट्स टेक इट. बट अगर सब कुछ मेरे आसपास इतना अच्छा है, वैल्यूज मुझे अच्छी मिल रही है, आई एम रीडिंग गुड बुक्स, आई एम टॉकिंग टू गुड पीपल, तो वो दबी हुई है. बट अगर जान पे बनाई और झूठ बोलना पड़ा, तो शायद वो भर के आ जाएगी, बिकॉज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पहले काम कर रही है. Yeah. Okay, so there are many more questions to ask from my side, but now I would like to call Ritik to put forth his question in front of you. Ritik, over to you. Hi Ritik. हेलो मैम. यस मैम, आई बिलीव मैम आपको ये क्वेश्चन राइट बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हमें तो आपके आंसर्स बहुत पसंद आ रहे हैं. Thank you Ritik, thank you. I'm trying my level best. And no ma'am, we are loving it. and you know Ritik, I'm the kind of person जो कभी भी गलती करने से डरता नहीं है. मुझे लगता है कि the more you make mistakes, the more you learn. That is the philosophy I believe in. So I'm not a fearful person by nature. Yeah, so that's so good. So my first question goes like that you're a therapeutic storyteller. So what do you do in these kind of like situations? Like what is the concept behind this therapeutic storytelling? Therapeutic storytelling, like as the name suggests, it is storytelling as a therapy to bring about a relief. Okay. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई बच्चा बहुत डरता है. Okay, so a lot of therapies are there. As a counselor, as a psychologist, there are a lot of therapies. But इसमें अगर आपको story telling का use करना है, so normally therapeutic storytelling में कुछ तो stories आपके पास रहती हैं जो उसके लिए रहती हैं, but आप बनाते हैं. हर client को ध्यान में रख के you create a story, which is a training. उसमें मेटाफर्स का यूज करते हैं. जैसे कहानियां तो पहले मम्मी पापा भी सुनाते थे कि एक गंदा बच्चा था, उसने झूठ बोला तो उसको टाइगर ने खा लिया. लगते थे कि कहानियों के थ्रू हम बच्चों को ये कुछ सिखा दें. लेकिन थेरेप्यूटिक स्टोरी टेलिंग में अगर बच्चे को समझ में ये आ गया कि ये मेरे ऊपर कौन करके आप स्टोरी बना रहे हो, तो वो काम नहीं करेंगे. तो इसलिए हमें इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो बच्चे जिसके लिए हम कर रहे हैं
उसको ये चीज कभी भी नहीं लगनी चाहिए कि ये मेरे लिए कह रहे हैं. Then it doesn't become a story. It's a lecture. ठीक है? Yes, ma'am. स्टोरी तो रहेगी नहीं वो. तो मेटाफर्स का यूज हम करते हैं. उसमें हम एनिमल कैरेक्टर ले लेते हैं. ठीक है कि आप एनिमल के संग तो बच्चा नहीं कि एक हाथी था, वो गया, उसने अपनी मम्मी से कहा कि आज मैंने खाना खाया ही नहीं है, जबकि वो केले खा के आ रहा था. तो बच्चा ये तो नहीं सोचेगा कि ये हाथी के मेरे बारे में बता रहे हैं. सो वी कैन टेक एनिमल कैरेक्टर्स, वी कैन टेक नेचर, मतलब बिल्कुल अलग उससे. लेकिन एक चीज करनी है कि प्रॉब्लम को जैसे लपेट के पेश करना. झूठ बोलना है तो सीधे झूठ वर्ड नहीं आना चाहिए. ओके, सो दैट इज हाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस कि आप मेटाफर क्या लेंगे. झूठ बोलने के लिए मेटाफर लेंगे कि वो कहता था और उसका पेट दर्द, उसने कहा मैंने खाना नहीं खाया और मेरा पेट दर्द करने में. तो बच्चा ये नहीं रिलेट कर पाएगा कि ये झूठ से है, बट सबकॉन्शियसली वो चीज उसके अंदर जाएगी. तो मेटाफर्स का यूज करते हैं और हर स्टोरी बड़ी सोच समझ के बनाई जाती है. और उसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि वो आप बच्चे को सुनाए और उसका बिहेवियर चेंज आ जाए. इट्स नॉट लाइक क्रोसिन की खाया और सिर दर्द खत्म. यू आर मेड इन वो. Okay, ma'am, I समझ गया. Yes, I got the concept. Ma'am, being a happiness and mindful coach, आप क्या recommend करेंगी? जैसे कि आज का जो लाइफ है बहुत लाइक बिजी हो गए हैं लोग, अपने हॉबीज को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. सो they just spend their time all time working. So what should they do every day? Like 2 or 3 things. So like being happy रहने के लिए, being the happiness and mindful coach, आप क्या recommend करेंगी? The most important thing is meditation is very important. मतलब मुझे लगता है कि meditation has to be a way of life. जैसे आप सांस लेते हैं वैसे meditation important है, because again it changes the network of your brain. Right? The more you practice meditation, the more you get a pause in life. That pause is very important. अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप 1 मिनट के लिए, जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना 10 तक गिनती गिनो, वो कुछ नहीं होता था. इट वॉज अ वे ऑफ टेकिंग ब्रेक, अ पॉज. अगर आपको 2 मिनट भी मिल जाए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में 2 मिनट भी मिल जाए, तो शायद आप सोच लेंगे कि गुस्सा करने का अंजाम क्या होगा. बट प्रॉब्लम ये होती है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में पॉज नहीं रहता है. So as a happiness coach, as a mindfulness coach, I always emphasize कि learn the habit of pausing. And ये pause की habit meditation से आती है. दूसरी important चीज है being grateful about everything around you. Okay. So I have been practicing gratitude for, I don't know, as long as I remember. To the extent आप believe नहीं करोगे, मैं बाथरूम में जाके अगर टैप खोलती हूँ तो I feel अरे I'm grateful कि पानी आ रहा है. It should be that कि आप कोई भी एक्टिविटी करो, gratitude should become a way of your life. हम बैठे हैं तो अरे हमारे पास कुर्सी, हम सोचते भी नहीं है, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. ठीक है, अरे लाइट है, ओके, आज हम घर में रह रहे हैं, हमने 1 रोटी खाई. Any small thing, right from the fact that we are breathing. So gratitude is the most important thing for happiness in life. Yes. You have asked, there are a lot of other things, but definitely gratitude is the most important thing, and taking a pause. Okay, ma'am, that's so good, ma'am, because yeah, it is like मैंने भी देखा है like people थोड़ा सा इससे दूर जा रहे हैं, like gratitude and all, जो मैं थोड़ा भी समझ रहा हूँ मेरे लाइफ स्टाइल से. And one more question. कहते हैं कि when I take happiness session, so every day routine में teacher should enter the class and ask the children, what are you grateful for? मम्मी ने टिफिन बना के दे दिया,
बस आ गई हमारी, हम यूनिफॉर्म पर पहन सकते हैं. Each and every day it should be drilled into them that gratitude should become a part of your life. I'm definitely going to use this because मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं एजुकेटर हूँ और मैं रोज क्लासेस लेता हूँ, so I will definitely use this in my class. Yes. I do not sleep without writing my gratitude diary. 5 things I have been grateful for. And you know, saying is not important. When you write down, that becomes very important. Yes. And also why I am grateful कि पानी आ रहा है. I can wash my face, I can drink water. Then you will start looking at the miracles of nature, miracles all around you. That is the cause of happiness. Got it. Yes, it's really helpful. One more question, like अभी आप भी कुछ जैसे हम लोग एप्स वगैरह यूज करते हैं राइटिंग के लिए या फिर कुछ अदर चीज के लिए, सो आप कुछ ऐसी ऐप यूज करते हैं जो आप हम लोग को रिकमेंड करना चाहेंगी राइट नाउ? मैं बहुत ही व्हाट शुड आई से इलिटरेट हूँ इन सब मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही इलिटरेट हूँ, बहुत बेसिक काम चलाऊ चीजें करती हूँ और मुझे लगता है जितना इन चीजों से दूर रहा जाए, जितना नेचुरल वे में किया जाए उतना अच्छा है. दैट इज माई वे ऑफ थिंकिंग. नॉट दैट टेक्नोलॉजी इज बैड बट हाउ यू यूज इट. एंड हम देखते जा रहे हैं कि इट इज सो ओवरपावरिंग. आई सी गुड अच्छे एडल्ट्स, मैं अपने घर में देखती हूँ कि माई डॉटर गेट्स पैरानॉइड कि मेरा फोन कहाँ है, यू नो, नेट क्यों नहीं आ रहा है. सो दिस इज अगेन जो स्पेक्ट्रम था आप एक लेवल क्रॉस कर रहे हो. सो इट्स अ गुड वे. बहुत सारी चीजें मैं अभी भी प्लेन राइटिंग पे बिलीव करती हूँ. I do not go to the laptop and use Word. Yes. I write with pen and paper because I like it. You know, so I'm not very tech savvy. कर लेती हूँ. But there are apps हैं. अगर आप mindfulness के लिए कहें, काम करके एक ऐप आता है, which is good. I recommend to begin with, and you people are the youngsters of this generation, so anything that works for you. Okay. काम is an app. काम करके एक ऐप है, तो वो बहुत अच्छा है. मैम मुझे स्टोरी टेलिंग ना मतलब बहुत पसंद है, लाइक स्कूल डेज से ही मैं, क्योंकि मेरे कजिन्स में सबसे बड़ा था, तो मैं जब जाता था मेरे कजिन्स के पास, तो जब नानी कहानी नहीं सुनाती तो मेरा काम होता था, तो मैं उनकी कहानी को ना मतलब कुछ भी करके जैसा बनता था सुना दिया करता था. एंड देन इन कॉलेज, तो फिर स्कूल टाइम्स पे भी मैं ऐसा रहा कि लोगों के बीच थोड़ा सा कहानी सुनाता रहा. उसी वजह से मेरा राइटिंग में थोड़ा सा हाथ आया कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, और अभी भी स्टेज पर मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर बनूं मैं. सो आप क्या रिकमेंड करेंगी मुझे कि मैं किस स्टोरी टेलिंग, मतलब कुछ ऐसे स्टोरी टेलर्स जिनको मैं फॉलो करूं? लाइक मैं अभी भी कुछ लोगों को फॉलो करता हूं, और हम लोग पिछला सेशन भी हुआ था एक कुशा मैम के साथ, उन्होंने भी कुछ हम लोग को टिप्स दिए थे ग्रुप करने के लिए. सो व्हाट वुड यू लाइक टू रिकमेंड अस नाउ? उषा वेंकटरमन इज अ डियर फ्रेंड एंड हम मिलते रहते हैं स्टोरी टेलिंग में. हम सिंगापुर में भी मिले थे. मैं सबसे पहले करती हूँ कि एक चीज, एक टीचर या गुरु को होना इसलिए जरूरी है कि आप जैसे कुछ चीज सीख के आए तो आप एटलीस्ट उनको, ही कैन गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक फॉर दैट टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गीता रामानुजम है, सीमा वाही मुखर्जी है, प्रियंका चैटर्जी है, श्रीदेवी सुनील है, ये सब मुंबई स्टोरी टेलिंग सोसाइटी के, सौम्या श्रीनिवासन है, लावण्या है, मतलब there are lots and lots of people. मुंबई स्टोरी टेलिंग सोसाइटी है, चेन्नई स्टोरी टेलिंग सोसाइटी में कई लोग हैं. So all these people are doing fabulous work. But to begin with, अगर आप कोई ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं तो एक चीज करिए कि कोई भी स्टोरी आपने ले ली, ओके, उनको आप लाइक आई हैव टोल्ड यू, जितना विजुअल बना सकते हैं, जितनी एक स्टाइल अपनी डेवलप कर सकते हैं, ओके, वो करिए आप. और फ्रेंड्स को सुनाइए, फीडबैक हर्ष से लीजिए, प्रतीक्षा से लीजिए. एक बार इस तरह से सुनाई, एक बार इस तरह से सुनाई, भाई क्या वर्क कर रहा है, किसमें तुमको ज्यादा मजा आया.
Okay. तो Got it. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मुझे भी कोई स्टोरी सुनानी होती है तो आई हैव अ फ्रेंड, हम जूम सेशन करते हैं कि यार देखो दिस इज द वे, तो शी विल गिव मी फीडबैक, यार इस वाली जगह पे ना कुछ और डाल दो, या इसमें विजुअल्स उतने क्लियर नहीं आ रहे हैं, एंड देन वी डेवलप दैट स्टोरी. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि बस एक दिन हम उठ के गए और हमने कहानी सुना दी, और मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि दूसरों को पता लगे ना लगे, मुझे पता लग जाएगा कि मैंने मेरी पूरी तैयारी से कहानी नहीं सुनाई है. वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है जब हम अपना खुद का काम अच्छे से नहीं करते. बट अगर हो सके तो आप ट्रेनिंग, देयर आर लॉट ऑफ, यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई विल कीप टेलिंग यू लॉट ऑफ 2-3 days स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम्स आर देयर, लॉट ऑफ स्टोरी टेलर्स आर डूइंग, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो. Definitely, I'll contact you. Thank you so much, ma'am. अभी मेरे इतने ही क्वेश्चन है. Over to you, प्रतीक्षा. Okay, so ma'am, you There's some network issues, I guess. mindfulness and happiness. हाँ हाँ. आपने मतलब ग्रैटिट्यूड डायरी राइटिंग का बोला था, हाँ. तो प्लीज टेल अस मोर थिंग्स, मोर एक्सरसाइजेस वी शुड डू फॉर हैप्पीनेस और माइंडफुलनेस. Gratitude is one. Okay. Forgiveness is very important, which is very difficult. Yeah. Forgiveness is very important, but it is very difficult. एक बहुत important चीज जो खुश रहने के लिए कि हम as human beings अपने बारे में बहुत critical होते हैं. ठीक है, हम दूसरों को माफ भी कर दें, पर वो हमें पता नहीं चलता. लेकिन हमारे अंदर एक आवाज है जो कहती रहेगी, प्रतीक्षा तुमने ये अच्छा नहीं किया, प्रतीक्षा तुम अच्छे नहीं किए, प्रतीक्षा तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, शायद तुमको प्रतीक्षा ये नहीं करना चाहिए था. तो हम उस आवाज को कभी सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही एक आवाज है जो हमें खुश नहीं रहने देती है. सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है. सो हैप्पीनेस के लिए एक सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. अगर आप पॉज करें और अपने दिमाग में देखें कि क्या थॉट आ रहा है. जैसे तुमने कहा कि मैं बहुत अच्छे से, मुझे शर्म आती है, मैं बात नहीं कर पाती. दिस इज द स्टोरी यू आर टेलिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन. अच्छा, ये चीज बताओ मुझे, अगर तुम्हारी फ्रेंड को अगर कुछ होता तो तुमसे क्या कहती? तुम्हारी एक कोई फ्रेंड होती और तुमसे कहती कि यार मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है, तो तुम उस फ्रेंड से क्या कहती? ये बताओ मुझे. जस्ट ट्राई करने से होगा. और क्या कहती? मतलब ये कि ऐसा तुमको लगता है, ऐसा है नहीं. ऐसा है नहीं. सो सेम चीजें तुम्हें अपने आप को बोलनी है. बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. ओके, अभी भी मुझे लगता है जैसे कभी मैंने स्टोरी सुनाई और ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे दिमाग में आता है कि नहीं यार आज मजा नहीं आया, शायद मैं उतनी अच्छी नहीं सुना पाई. ओके, तो मैं कहती हूँ तो क्या हुआ, कई चीजें उसमें अच्छी थी. मैं अपने आप को अपना समझती हूँ कि ज्योति अपने फ्रेंड को बोल रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, नहीं यार तूने कोशिश की थी, काफी चीजें अच्छी भी थी उसमें, एक आध चीजें गड़बड़ हो गई तो जाने दो. हम फ्रेंड्स को यही कहते हैं ना, वी आर देयर shoulders to cry on. Yeah. Support system. So do the same with yourself. Please do not be critical about yourself. ये हमें कोई नहीं बताता, बचपन से माँ बाप हमें कोई नहीं सिखाता है कि हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, which is not good. Becoming aware is one thing, but critical होना, क्योंकि then फिर आप दूसरों के लिए भी critical होते हो. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तो आप दूसरों को भी उतनी ही आसानी से एक्सेप्ट करते हो, एंड योर रिलेशनशिप्स आर बेटर. Okay, thank you ma'am for your advice. Ma'am, in the time of competition, feeling jealous is common, I think सबके साथ ही होता है. Whether it's your friend, also friend के साथ भी competition में certain times लगता है that we feel jealous about them, but ऐसा कभी मतलब ये जेलेसी क्या नार्सिसिज्म को लीड कर सकती है? आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंसिएट द वर्ड नार्सिसिज्म करेक्टली. नार्सिसिज्म
प्रतीक्षा, जेलसी इज नॉर्मल आई वुड से, लेकिन क्यों हमें जेलसी हो रही है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वही व्हेन यू गिव अ पॉज, ओके, सपोज आई एम वेरी जेलस ऑफ अ गुड स्टोरी टेलर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं अपने आप को एक पॉज देके सोचती हूँ कि मैं यार उससे क्यों जलती हूँ, वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है. तो व्हाट अबाउट माई सेल्फ, मैं भी स्टोरी सुनाती हूँ. आर वी सेम, वी ऑल आर यूनिक. क्या मेरे में जो अच्छाइयां हैं वो उसमें आ सकती हैं? पर ये सब क्या होता है जब आप कॉन्शियसली पॉज होके अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन करो. ओके, देन द आंसर विल कम टू यू कि नहीं यार, तुम में भी बहुत सारी चीजें हैं. एवरीबडी इज यूनिक. तुम में ऐसा कुछ है जो उसमें नहीं है. लेकिन हम जब सुपरफिशियल लेवल पे सोचते हैं, देन जेलसी इज एन इमोशन, एंड नो इमोशन इज गुड और बैड. यू आर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे जेलसी हो, चाहे एंगर हो, चाहे हेट्रेड हो, कोई भी इमोशन अपने आप में बुरा नहीं होता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपको बताता है. गुस्सा बताता है कि मेरी कोई नीड फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसको मैं सही तरीके से कैसे फुलफिल कर सकता हूँ. सो दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ इमोशंस. कि कहा जाता है ना बचपन से सब, गुस्सा मत करो, खराब हो. नहीं, गुस्सा खराब नहीं है. अगर गांधी जी ने गुस्सा नहीं किया होता तो हम तो आजाद ही नहीं होते. He felt angry about his situation. So that is what, take a pause and try to understand कि ये इमोशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है. क्या ये बता रहा है कि मैं जेलस हूं, कि शायद थोड़ी मैं मेहनत करूं तो और बेटर कर सकती हूँ, या मुझे कंपैरिजन कर रही हूँ, ये बता रहा है कि आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ, विच इज आई वुडंट से गुड थिंग, बट you cannot compare because we all are unique. Yeah. These are the reminders which you need to tell yourself every day, which I find very helpful. जब मुझे लगता है jealousy, लेकिन मैं कहती हूँ फिर मैं क्या, I am unique. मेरे सफेद बाल है, उसके काले बाल है, उसके बड़े बाल है, मेरे छोटे बाल है. So that is the whole beauty of it. Okay, so ma'am, you use the term comparison. So I generally, literally, and frequently compare myself to everyone. This is my negative point. I know this is a real. Hello. You were not audible. Hello, am I audible? Yeah. Now you were saying this is a negative point. वहां तक मैंने सुना. Now I'm hello. Yeah. You're audible. Hello. I think that okay. Network issue है, I think. हाँ. तो मैम वो एक कंपैरिजन का बोल रहे थे, तो इसको कैसे डील कर सकते, मतलब कि ना करें. Okay. What are the practices to stop comparing yourself with others? Wonderful, Pratiksha. I'm so happy you asked me. Now tell me one good thing which others tell about you. जो दूसरे लोग तुम्हारी कोई भी चीज कहते हैं कि प्रतीक्षा में ये चीज बहुत अच्छी. ऋतिक, आप बताओ प्रतीक्षा में क्या अच्छा है? She's a very good team member. बहुत अच्छे से support करती है. She's a team person. ओके, हर्ष आप बताओ प्रतीक्षा में क्या अच्छा है? She's polite and always ready to help. नकीब आप बताइए प्रतीक्षा में क्या अच्छा है? As Harsh said, she's polite. प्रतीक्षा, तुम्हें अपने बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मैम आई थिंक मतलब ऐसा कि पोलाइटनेस. नाउ दिस इज अ रिमाइंडर, लाइक जैसे लोग दवाई लेते हैं सुबह दोपहर शाम, अपने दिमाग में कि ऋतिक ने ये कहा था, हर्ष ने ये कहा था, नकीब ने ये कहा था, मुझे उसने ये कॉम्प्लीमेंट दिया था. प्लीज कॉन्शियसली ब्रिंग दोज थिंग्स इन योर माइंड. ठीक है? और दिमाग में दो थॉट्स एक साथ नहीं चल सकते हैं, या तो अपने बारे में अच्छा चल सकता है या अपने बारे में खराब चल सकता है. तो हमको क्या करना है कि जैसे
डॉग के आगे से आप बोन हटाएंगे तो वो काटेगा, तो आप ये चीज रख के फिर वो बोन हटानी है. You have to replace all your these thoughts with the thoughts what people say, what your mother says, what your friends say, all the good things about yourself, and write it down. ज्यादा है ना तो लिखो अपने बारे में. As a friend, write a letter to yourself. Dear Pratiksha, you are a wonderful girl. Your smile is so good. Ritik says I am a very good team member. Do that. And as simple as that. Surely, ma'am, I will. No, this is a proper psychological, मैं ये बना के नहीं कह रही हूँ. It's a therapy. We use a letter to self. It's a technique which we use. No, I heard about that technique, but and I did that. I'm not denying I did that, but it doesn't work for me. For now, at least अभी तक तो नहीं वर्क किया हुआ है, but I'll repeat it again and again. पगडंडी बनाने के लिए एक बार दो बार करने से पगडंडी नहीं बनती है. जब तक कि न्यूरल नेटवर्क नहीं चेंज होगा ना, तब तक नहीं होगा. इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. It's a simple thing, but it's not easy. This is what I'm trying to tell you. You have to really work hard. Yes. Maybe stand in front of the mirror and tell yourself, Pratiksha, I think I like you. This is the most difficult thing, liking ourselves. क्योंकि सारी दुनिया जो आसपास की है ना बचपन से, कंडीशनिंग हमारी ये है कि सारी मिस्टेक्स लोग पॉइंट आउट करते हैं और अच्छी चीजें कहना भूल जाते हैं. Yeah, sure. That is the thing I feel. Okay, ma'am, surely I will. And now, ma'am, I would like to call Anuj to put forth his question in front of you. Anuj, over to you. नमस्ते मैम. हाय अनुज, नमस्ते. पहले तो एक बात सबसे पहले मैं यही से शुरू करूंगा कि आपने जो भी अभी बातें कही, मैं इनको जवाब नहीं कहूंगा कि आपने जो जवाब दिए, मैं कहूंगा कि आपने जो बातें कही, पहली बात तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी. इतनी अच्छी बातें जवाब तो कोई बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन इतनी अच्छी बातें कम लोगों से आती हैं. और दूसरी बात, जो भी आपने लोगों को लेकर, उनकी साइकोलॉजी को लेकर जो पॉजिटिव चीजें बताई, उनमें मैं खुद को बहुत जगह पर खरा पाता हूँ. इस बारे में मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत जगह पर बहुत अच्छा हूँ. तो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी कि यानी जहां आप 10 लोगों को परेशान देखते हैं और वो 10 लोग जब अपनी परेशानियां बताते हैं कि मैं इस चीज से परेशान हूं, मैं उससे, और मैं उस जगह पे खुद को देखता हूं कि यार होता मेरे साथ भी है, बस मैं इस जगह पे परेशान नहीं होता हूँ. तो मैं बड़ा खुश हूं कि जो इसको साइकोलॉजी के टर्म में भी अच्छा माना जाता है, भले लोग इसको नजरअंदाज करना कहें या जो भी कहें, लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज में खरा उतरता हूँ. तीसरी चीज कि आज ही मैं सोच रहा था कि जैसे हमने जब बतकही शुरू किया था, तो बतकही शुरू किया था, वो पहले हम लोग का एम था कि राइटर्स कवर करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग राइटर हैं सभी, हम लोग लिखते हैं, हल्का फुल्का लिख पाते हैं लेकिन लिखते हैं. लेकिन फिर जब ये आर्टिस्ट पे कन्वर्ट हुई कि जो भी आर्ट फॉर्म है, जितने भी हैं, उनमें जो भी कुछ अच्छा काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको हम इसमें लाएंगे. तो इसकी फील्ड में जब हम लोग उतरे, तो आज मेरे दिमाग में ये विचार आया कि जैसे आप स्टोरी टेलर हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, हम नहीं जानते कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है, हम नहीं जानते कि साइकोलॉजी में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है. तो अगर हम केवल आपसे नॉर्मल सवाल पूछेंगे कि आपने सफर कैसे शुरू किया या ये और वो, या किताबी ज्ञान तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एकेडमिक नॉलेज होता है, अगर हमने आपसे वो नहीं पूछा तो शायद ये सेशन कोई काम का नहीं बचेगा. तो सबसे पहला सवाल ये मेरा रहेगा कि एक आप अपने नजरिए से बताइए कि स्टोरी टेलिंग क्या है. स्टोरी टेलिंग सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं तो लोगों से जुड़ने का एक जरिया है. बस एक लिसनर रहता है, एक टेलर रहता है, और दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो स्टोरी टेलिंग है. कनेक्शन स्टैब्लिश करने का जो जरिया होता है वो स्टोरी टेलिंग है. और आजकल तो आप कहीं भी कॉर्पोरेट्स में या इंटरव्यू में जाइए तो कोई आपसे ये नहीं बताता कि अपने बारे में बताइए.
people say, tell me your story. And who can tell your story better than yourself? Okay, so this is what stories, मतलब corporates में इंटरव्यू में लोग आपको जानना चाहते हैं ऑथेंटिक क्या है, आपकी कहानी क्या है. दिस इज, वी कॉल इट पर्सनल स्टोरी टेलिंग. यू नो कि स्टोरी टेलिंग में भी फोक टेल्स होती हैं, हीलिंग स्टोरीज होती हैं, पर्सनल स्टोरीज होती हैं. सो जब हम, आप छोटी सी चीज है, फ्रेंड्स के बीच में हम कोई एक चीज शेयर करके अपने आप को कितना हल्का महसूस करते हैं. तो आप क्या कर रहे हो, कहानी तो सुना रहे हो, वो सुन रहा है, आप सुना रहे हो. आपने पूरा उसमें बताया कि यार पापा ने आज बहुत डांटा और मैं तो थका हारा पहुंचा था और भूखा था, देर हो गई, स्कूटर खराब हो गया, अब वहां पहुंचा तो क्या पापा को तो समझ में आ नहीं रहा था. ये चीज आप फ्रेंड को बता रहे हो. यू आर द हीरो, देयर इज अ सिचुएशन, सो दिस इज व्हाट इट इज. इट्स अ स्टोरी. It's a story in one sense. So क्या हो रहा है? You are forming a connection. You are looking for a response from the friend. That is what the story is. Any and everything is a story, मुझे लगता है. हर बात जो आप करते हैं वो एक कहानी ही होती है. अगर उसको जो स्टोरी की डेफिनेशन है उसमें ना, उसमें क्या होता है, हर कहानी में एक हीरो होता है, अपनी कहानी में हम हीरो हैं. So that is what, सिंपल तरीके से जो जितना मैं समझती हूँ वो स्टोरी है. अनुज, दूसरा मेरा सवाल है कि स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है इसको डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए. अब इस सवाल का जवाब मुझे वो नहीं चाहिए जो किताबों में मिलता है, मुझे वो जवाब चाहिए जो ज्योति पांडे स्वयं अपनाती हैं कि स्टोरी टेलिंग का आर्ट कैसे डेवलप किया जाना चाहिए. चलिए, एक बहुत बड़ी सीक्रेट है, वैसे मैं बताती नहीं हूँ, हम स्टोरी टेलर्स की भी अपनी अपनी होती है. ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी आर्ट है. प्रतीक्षा की कहानी अगर मुझे सुनानी हो तो मुझे प्रतीक्षा को देखना पड़ेगा, वो कैसे मुस्कुराती है, वो कैसे बैठती है, ओके, उसकी आंखों में चमक कब आती है उसका. सो दिस इज व्हाट इट इज, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन अदरवाइज ऑल्सो एक बहुत बड़ी स्किल है जो हम भूल चुके हैं. हम ऑब्जर्व करते ही नहीं है क्योंकि हम दौड़े जा रहे हैं. ऑब्जर्व करने के लिए तो रुकना पड़ेगा ना, मुझे प्रतीक्षा को देखना पड़ेगा. जब मुस्कुराती है तो उसके यहाँ पे हल्के से गड्ढे पड़ते हैं, ओके, वो एक साइड से झुकाती है. तो अनुज, ज्योति एज अ स्टोरी टेलर से अगर आप पूछेंगे तो मेरे लिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं फ्लाइट में कहीं जाऊं, मैं रेस्टोरेंट में जाऊं तो मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बड़ा अच्छा लगता है. फिर जब मैं कोई कहानी सुनाती हूँ और उसके हीरो के बारे में बताती हूँ तो मैं उस आदमी को ध्यान में रख के बताती हूँ. तो मैं वो सारी चीजें करती हूँ कि वो उसने बाएं हाथ से चश्मा उठाया और उसको ऐसे दबाया, ओके, फिर उसने बाल यहाँ खुजलाए, तो वो अपने आप एक इमेज बहुत अच्छी बनी. तो ये मेरी सीक्रेट थी. पर ऑब्जर्वेशन, कोई भी कैरेक्टर, जब आप लोग तो लेखक हैं, आप लिखते हो, ठीक है, तो एक इमेज बनाते हो, तो वो शायद कहीं आसपास के लोगों से ही होती हो. तो ऐसे ही हम स्टोरी टेलर्स को, या जैसे मैं भी अपनी स्टोरी सुनाऊं जो मेरे घर में हेल्प करती है, तो मैं उसको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ. वो मुझे बोलती दीदी, तो मैं कोई कहानी सुनाऊंगी और उसमें वो कैरेक्टर होगा तो मैं दीदी. There's a peculiar way of saying. So I try to incorporate all that in storytelling. Observation बहुत important. उसने कप उठाया, ठीक है, कप को कोई ऐसे पकड़ता है, दोनों हाथों से कप पकड़ा या एक हाथ से कप पकड़ा, तो एक सिंपल सी चीज है, उसने कप उठाया, उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. उसने कप उठाया और दोनों हाथों से उसको पकड़ा. तो अगेन डिटेलिंग में ऑब्जर्वेशन बहुत करता है. आई होप अनुज मैं आपको सेटिस्फाई कर पाई होंगी. जी, मैं फिर से वही बात बोलना चाहूंगा जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि मैं कहीं ना कहीं इस जगह भी खुद को खरा पा रहा हूँ. बस अब इसको स्टोरी टेलिंग में इम्प्लीफिकेशन इसका करना है मुझे, क्योंकि लिखने में मैं इस चीज को बहुत ज्यादा इम्प्लाई कर चुका हूँ पिछले 2 सालों में.
मैं कहूंगा कि मैंने मुश्किल से ऐसी 10 रचनाएं होंगी जो मैंने खुद के भावों को सहेज कर लिखा, बाकी मैंने दूसरों को ऑब्जर्व करने के बाद ही लिखा, क्योंकि मैं अभी कह रहा था ना, मैं बड़ा बेफिक्र रहता हूँ, मुझे नहीं होती चीजों से परेशानी, मैं नहीं हो पाता परेशान। तो अब खुद परेशान नहीं हो रहा, खुद के अंदर वो भाव नहीं आ रहा, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब लिखना तो है। तो अब जैसे दिल नहीं टूट रहा, लेकिन अगर मन कर रहा है कि दिल टूटने पे कुछ लिखना है, तो अब किसी का तो देखना पड़ेगा ना, तो या तो किसी का तोड़वा देते हैं। ये तो बड़ी बात हो गई अनुज। या हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो रहता है ना कि अब नहीं परिस्थिति पैदा हो रही है तो परिस्थिति खुद से पैदा कर दो, क्योंकि आपको तो चाहिए, आपको तो जरूरत है ना। तो बड़ा कॉमर्स का भी एक बड़ा वो होता है ना कि आवश्यकता अपनी पूर्ति स्वयं करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं उसको अप्लाई कर लेता अपनी जिंदगी में। इसके बाद एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है कि मुझे जैसे मास्टर्स करनी है साइकोलॉजी में, बड़ा मन है। क्यों है? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, वही मैंने बात कर रहा हूँ ना, मैं ऑब्जर्व करना मुझे बहुत पसंद है, मैं लोगों को पढ़ना, मैं बहुत मजा आता है जब मैं लोगों को पढ़ता हूँ, और काफी देर तक बैठ के पढ़ता रहता हूँ, फिर उनके बारे में मैं खूब बोलता हूँ। यदि कोई मुझसे कुछ नहीं भी पूछ रहा कि मैं कैसा हूं, तो मैं उसके बारे में खूब बोलूंगा, दिलेरी से बोलूंगा, और खूब खराब भी बोलूंगा। तो मुझे साइकोलॉजी से मास्टर्स करना है, तो मैं उसमें कंफ्यूज हूँ कि मास्टर ऑफ आर्ट्स किया जाना चाहिए या मास्टर ऑफ साइंस किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने जब साइकोलॉजी की थी तो मास्टर ऑफ आर्ट्स ही थी, एमए और एमफिल भोपाल यूनिवर्सिटी से किया था मैंने। कई जगह एमएससी साइकोलॉजी है, कई जगह, ये आपको करिकुलम देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या उनका क्या वो कवर करते हैं। मे बी एमएससी में शायद ब्रेन स्ट्रक्चर या पढ़ा हमने भी था, शायद वो ज्यादा डिटेल में हो, बिकॉज साइकोलॉजी इज नाउ, पहले आर्ट्स में आती थी, नाउ इट्स अ साइंस। लाइक जैसे स्टोरी टेलिंग इज वेरी साइंटिफिक, देयर इज अ साइंस बिहाइंड कि ब्रेन में क्या होता है। जब आप कहानियां सुन रहे हो तो मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं, सो इट इज अ साइंस। हाउ इट अफेक्ट्स द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू, सो इट्स अ साइंस। तो वो आपको देख के डिसाइड करने पड़ेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग करिकुलम रहता है, स्पेशलाइजेशन रहता है। जैसे एमएससी बड़ौदा का मुझे पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट साइकोलॉजी में एमएससी साइकोलॉजी करें तो उसमें वहां का चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है और फोकस इज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मुझे अभी काफी समय से मुझे बहुत टाइम हो गया है किए हुए, अब मैं ज्यादा काउंसलिंग पे फोकस करती हूँ, और जो पढ़ते रहना है वो तो कहीं से भी तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे की आप क्या करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है वो देखिए, रिसर्च करिए सबके कोर्स करिकुलम पे, और फिर ये करिए, मतलब एमएससी करूँ या एमए करूँ, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अभी भी एमए, ये आपकी चॉइस है ही नहीं, वो एमए देती है या एमएससी देती है। You know, it's not कि एक ही यूनिवर्सिटी एमए और एमएससी दोनों दे रही है, तो डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। भोपाल यूनिवर्सिटी का मुझे पता है एमए साइकोलॉजी है। इसमें तो मैं थोड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझूंगा कि मध्य प्रदेश में एमएससी केवल सागर की यूनिवर्सिटी में है, हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय में, और कोई मध्य प्रदेश में एमएससी साइकोलॉजी नहीं कराता। नहीं। तो मेरे पास ये थोड़ा एक ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं पता भी कर सकता हूँ आसानी से। आपने कहा पढ़ने की बात से, तो मैं करीब 2 साल पहले एक किताब पढ़ रहा था, मैं उसका राइटर का नाम भी भूल चुका हूँ, मैं उस किताब का नाम भी भूल चुका हूँ, लेकिन शायद मेरे हिसाब से वो काफी फेमस किताब थी, तो शायद मैं आपको अगर कुछ हिंट दूं तो आप मुझे वो नाम बता सकें, क्योंकि मुझे वो किताब पढ़नी है। वो अजम्पशन पे थी कि आप कितना प्रिसाइज अज्यूम कर सकते हैं चीजों को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कितनी आसानी से बता सकते हैं। और उसका जो राइटर था, तो 1945 में जब फर्स्ट एटॉमिक वो हुआ था, परीक्षण हुआ था जो अमेरिका में, वो बंदा वहां पे मौजूद था, और जब वो जैसे ही मशरूम उठाना पहले टेस्टिंग पे, तो उसने कुछ कागज के ऐसे टुकड़े उठा के ऐसे फेंके थे, और उसकी इंटेंसिटी बताई थी कि इसकी कितनी है, ये जो एटॉमिक ब्लास्ट हुआ। और फिर रिसर्च हुई 6-7 महीने बाद, रिसर्च के बाद जब उनने एक वैल्यू निकाली, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बिल्कुल करीब थी वो।
तो उस बुक में ना अजीब अजीब सी चीजें थी, जैसे लेफ्ट हैंड से लिखने वाले कितने हैं आपके शहर में, तो ये आप बड़ी आसानी से अज्यूम कर सकते थे बिना किसी को जाने परखे। तो वो क्या पता वो कौन था राइटर, लेकिन वो बड़ा मतलब अच्छा साइंटिस्ट था। वो जो भी हो, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था और उस बुक का नाम क्या था। वेरी इंटरेस्टिंग अनुज, पर मुझे नहीं याद आता कि मैंने ये किताब पढ़ी हुई है। और पिछले कई सालों से, 7-8 सालों से मैं अब पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बहुत फोकस करती हूँ। जैसे मैंने बताया, माइंडफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस, ये सब चीजें ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन बींग्स को अपने पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करती है। सो साइकोलॉजी इज सच अ वास्ट फील्ड, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, रिलेशनशिप से रिलेटेड साइकोलॉजी। सो मेरा फोकस अपनी इस पे पॉजिटिव साइकोलॉजी पे है, हैप्पीनेस, माइंडफुलनेस, रेजिलियंस, ऑल दीज थिंग्स। सो आप बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, पर मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ इसके बारे में। तो मैम, जैसे मुझे आपसे एक बुक सजेशन यदि मैं मांगू, मुझे जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशन काफी पसंद है, तो सरल शब्दों में माने तो मुझे तुक्का लगाने के लिए यदि कोई साइकोलॉजी की चीज पढ़नी है तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? वही अजम्पशन कि आप कितना प्रिसाइज अज्यूम कर पा रहे हैं चीजों को। अनुज, मैं नहीं इसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगी। मुझे साइकोलॉजी की बुक्स अगर आप माइंडफुलनेस या किसी चीज पे पूछें तो, बट इस पे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मुझे काफी टाइम हो गया है मास्टर्स और एमफिल किए हुए, और उसके बाद मैंने फील्ड ही अपनी, मतलब स्पेशलाइजेशन ही मेरा पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गया है। तो अदरवाइज मेरी एक बहुत ही फेवरेट बुक है, मैं देख के नाम भूल रही हूँ, मैं अभी याद आता है तो आपको बताती हूँ। एज ऑफ नाउ मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। इट इज अबाउट द पर्सन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना उसको टॉर्चर किया गया, फिर भी उसने कभी, मतलब उसका रेजिलियंस था, and he became a famous psychologist. I'm forgetting the name of the book. I will just send a message the moment I remember. और या भी मुझे याद आता है तो मैं बताती हूँ। So that is the beauty. It says कि आपको परिस्थितियां आपको डिफाइन ही नहीं कर सकती हैं, आप अपने आप को डिफाइन करो। How you react is more important than what the situation is. So it also talks about your perception about life. कितनी भी मुश्किल हो, कुछ लोग बकल डाउन हो जाते हैं प्रेशर और हार मान लेते हैं। तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो ये पढ़ती है कि ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोगों में, ऐसा क्या होता है विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव अंडर all adverse circumstances. That is one of psychology studies. तो ये है, और मेरे को मुझे जैसे ही याद आता है मैं पक्का आपको I send a message to Harsh. I have Harsh's number and I would definitely suggest this book to you. मैंने असल में ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आज एक चर्चा चल रही थी अभी कुछ ही समय पहले। हाँ। तो मैं ये था कि जैसे मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो असल में लिटरेचर से आप कभी भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ये बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि ज्ञान अर्जित आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर चिंतन की क्षमता हो। टोटली, बिल्कुल। और चिंतन की क्षमता आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप में समझ हो। अब यदि व्यक्ति में समझ ही नहीं, वो 18 साल का है, उसमें अभी उसने कुछ देखा ही नहीं है दुनिया में, भले वो अंदर समझता हो तो उसने सब देखा है, तो वो कहाँ से वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा केवल लिटरेचर पढ़ने से। इसलिए आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं सिविल सर्विसेज का एक स्टूडेंट एस्पायरेंट हूँ, तो मैं बाकी चीजें तो खूब पढ़ता रहता हूँ, उसमें फिलोसफी भी थोड़ी बहुत आ जाती है, इंक्लूड हो जाती सिविल सर्विस, लेकिन साइकोलॉजी नहीं होती। और अभी अभी एमपीपीएससी ने एक धमाका किया था कि उनने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जोड़ दिया है मेंस में, तो इस कारण से थोड़ा साइकोलॉजी के प्रति और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। शुरू से था, अब और ज्यादा।
क्योंकि मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो किताब के बारे में आपसे थोड़ा पूछा, क्योंकि अगर वो मुझे, क्योंकि वो मेरे पास एक एनी बुक करके ऐप थी, उसमें मेरे पास सेव थी। अब पहले ऐसा होता था कि उस ऐप की हर चौथे दिन में नई लॉन्च होती थी वो ऐप, हाँ, तो हर चौथे दिन में मुझे फिर से डाउनलोड करनी पड़ती थी, तो वो बुक मुझसे गुम गई। और अब ना मुझे उसका नाम पता है, ना मुझे उस राइटर का नाम पता है, लेकिन वो कुछ अलग था वो इंसान जिसने भी वो किताब लिखी थी, क्योंकि वो आपको अज्यूम करना सिखा देगा। आप छोटी से छोटी चीज अज्यूम कर सकते हैं, जैसे आपके शहर में लेफ्ट हैंड से लिखने वाले कितने लोग हैं, आप एक अप्रोक्स वैल्यू बता देंगे और वो उसके आसपास ही निकलेगी हमेशा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। किताब का नाम याद आ गया है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल। मैम मैं अभी लेके आया वो बुक। ये दिस इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स बुक। विक्टर फ्रैंकल की बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। सो इफ यू एवर गेट टाइम, और मैं सबको बोलती हूँ कि ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, एक बहुत अच्छी चीज है, एंड इट जस्ट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। मैम ये किस बारे में है, मतलब आप थोड़ा बता। ये है पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में। इट्स अगेन फिलोसफिकल, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में है, एंड हैप्पीनेस के बारे में कह सकते हो, माइंडफुलनेस के बारे में कह सकते हो, सब चीज जो दुनिया में हमें जरूरी है उसके बारे में है। मैन सर्च फॉर मीनिंग बड़ी बहुत ही फेमस किताब है। इट इज वन ऑफ द बुक्स विच एवरीबडी सेज मस्ट रीड बुक्स में से है। सो दैट इज इट। मैम कहीं ना कहीं इसका जोनर सेल्फ हेल्प तो नहीं है ना? सेल्फ हेल्प नहीं कहूंगी मैं, सेल्फ हेल्प नहीं कहूंगी। इट्स मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल बुक। और मेरे पास प्रश्न मैम अभी तो इतने ही थे, एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं था वो, लेकिन वो एक मेरा रहता है ना कि मैं किसी इंसान के बारे में थोड़ा बहुत ही यही जान जाऊंगा कि इसका प्रोफेशन क्या है या किस जगह इसकी ज्यादा पकड़ है, तो मेरे पास इतने पर्याप्त तो सवाल होते हैं, हमेशा होते हैं। मतलब आप चलते फिरते भी कह दो कि ये आदमी बहुत अच्छा है इस चीज में, तो मैं उससे 4 सवाल पूछ लूंगा, काफी क्यूरियोसिटी रहती है। तो फिलहाल इतने सवाल थे, धन्यवाद मैम। मैम am I audible? Yeah, you are. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कई सारी स्टोरीज सुना चुकी हैं, और जो स्टोरीज में लोग डायलॉग बोलते हैं, जैसे आप ऑब्जर्वेशन की बात बताई कि हम आपस में भी डायलॉग्स में ही बात करते हैं, ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन जो करते हैं। तो मेरा कहना था कि जब मैं स्टोरी लिखता हूँ या कोई डायलॉग लिखता हूँ, तो मतलब 2 टाइप की चीजें होती हैं कि या तो एक पोएट्री लिखना, ओरेशन लिखना, लंबा टेक्स्ट लिखना। तो उसमें हम इफेक्टिवनेस डाल सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक ग्रास्प करके रखना है ऑडियंस को या रीडर को, तो उतने में हम वो चीज बना लेंगे मोमेंटम। पर डायलॉग 2 वर्ड का भी होता है, 1 वर्ड का भी होता है, 1 लाइन का भी होता है। तो उतनी सी चीज में, उतने से टेक्स्ट में वो इंटेंसिटी लाना जो एक पोएट्री और ओरेशन में होती है, वो कैसे लाई जा सकती है? हर्ष, मुझे लगता है कि अगेन जो, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ कि आप बात कर रहे हैं इफेक्टिवनेस की, तो जो सेंसरी मोडालिटीज अगर आप किसी भी चीज में डालो, चाहे लिखने में डालो, चाहे बोलने में डालो, जहां हम सेंसेस का यूज करते हैं, सेंसरी मोडालिटीज का, जैसे स्मेल का हम बहुत कम यूज करते हैं। तो अगर मैं एक कहानी सुना रही हूँ और मैंने कहा कि मुझे दादी के सूजी के हलवे, देशी घी में भुने सूजी के हलवे की खुशबू, इतना सा बोलना, और 1000 तरह के पकवान बनाए थे, उसमें एक था हलवा, सब बराबर है। इसमें जहां मैंने स्मेल डाली, तो हमारे जो मिरर न्यूरॉन्स हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आपके घर में जब हलवा बना होगा उसकी स्मेल। ठीक है, तो जहां हम सेंसरी मोडालिटीज का यूज करते हैं, दैट बिकम्स वेरी, एंड मेटाफर्स, अगेन मेटाफर्स का यूज करते हैं कि वो रुई के सफेद गोले सा था। ठीक है, तो दैट बिकम्स वेरी इफेक्टिव। तो मेटाफर्स और सेंसरी, ये स्टोरी टेलिंग में मैं यही करती हूँ। मैं लिखती तो नहीं हूँ बहुत, पर मैं जो स्टोरीज पढ़ती हूँ और जो मेरे दिल को छूती है कि अब मुझे ये सुनाना है, तो उसमें मैं ये चीजें पाती हूँ।
तो सेंसरी करिए, स्मेल, साउंड, ओके, स्मेल, साउंड, टच। मैम अभी हमारे सवाल तो लगभग खत्म हो गए मेरे तो एटलीस्ट, तो अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो क्या आप कोई छोटी सी स्टोरी सुना सकती हैं मैम? We would love to hear. Just let me have a sip of water. बहुत 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 समय पहले की बात है, बहुत बहुत समय पहले की बात है। सच इधर से उधर, इधर एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव घूमता जा रहा था। एक गरीब के झोपड़े से लेकर महलों के दरवाजे तक उसने अंदर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसने हर घर में जाकर दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सच थक चुका था, बहुत थक चुका था। इतने दिनों से चलते चलते उसके पैर में छाले पड़ गए थे, कपड़े फट गए थे, बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, सूखा चेहरा, भूखा प्यासा घूमता ही जा रहा था। आखिरकार वो एक गांव के चौराहे पर पहुंचा। चौराहे पर जाकर दूर से खड़ा होकर देखा तो बीचों बीच में एक सफेद सी मूर्ति थी। उस मूर्ति में सारे रंग थे, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, चमकीला, सुनहरा। उस मूर्ति के पास लोग खुश होकर हंस रहे थे, बच्चे उसको छूना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। सच दूर खड़ा देखता रहा। अंधेरा हो गया था। जब सब घर चले गए तो वो उस मूर्ति के पास गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? कौन हो जिसे सब इतना प्यार करते हैं? सब तुम्हें छूना चाहते हैं, सब तुम्हारे पास बैठना चाहते हैं, सब तुम्हें देखकर खुश होते हैं। वो मुस्कुराई। उसने कहा, मैं कहानी हूं और तुम नंगा सच। सच को कौन चाहता है, लेकिन मेरे पास उपाय है। उसने अपने ऊपर से सारे रंग, लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, उस सच के ऊपर लपेट दिए। अब सच के ऊपर भी वो सारे रंग थे और वो उसका हाथ पकड़कर चल गई। और कहते हैं उस दिन से सच और कहानी साथ साथ चलते हैं। इसीलिए शायद हर कहानी में हमें कोई ना कोई सच नजर आता है। Amazing, ma'am. Really wonderful. Really amazing, Wonderful. ये एक कोट, मतलब इसको, ये जो आपने कहानी सुनाई, ये उषा मैम ने एक सेशन में, मतलब हमारे साथ जो सेशन हुआ था उसमें नहीं, किसी और सेशन में ये कोट की थी, ये वाली बात कि आप सच बोलेंगे तो शायद कोई नहीं सुनेगा, लेकिन उनको आप कहानी सुनाएंगे तो वो सुन लेंगे। इट वॉज रियली वंडरफुल लिसनिंग टू यू मैम। बहुत थैंक यू मजा सो मच, आया। मुझे बहुत पसंद है। और कहते हैं ना कि जब घर में कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे घर में टमाटर आलू की रसे वाली सब्जी बन जाती है। तो इसी तरह जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो ये एक कहानी है जो मेरे इतने दिल के करीब है। मुझे लगता है इसके संग तो मैं जस्टिस करी तो मैंने ये कहानी सुनाई। आई लव दैट मेटाफर, रस्से वाली सब्जी, दैट वाज अमेजिंग। सो ये था एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। पता, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं स्क्रीन के बाहर, मतलब स्क्रीन से बैठ के बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा था हम सब सागर में यूनिवर्सिटी कैंपस में पहाड़ी चढ़ के ऊपर बैठे हैं और एक बात कही का सेशन चल रहा है और बातचीत चल रही है। और मुझे बहुत मजा आया। ऐसा कभी करना चाहेंगे रियल में करे तो आई विल ऑलवेज लव So that is it. Sure, ma'am. Thank you so much for joining. To be a part of Batkahi. Thank you so much.
Thank you so much, ma'am, for joining. Thank Thank you you. so much, ma'am. We really loved the session and every answer. Thank you so much. It was a pleasure. Okay, bye Thank- everyone. Bye bye, ma'am. Bye, Good night, ma'am. ma'am. Take care. Bye, Good bye. night, ma'am. Good night. Good night.